Okay. Not for profit concerns. Basically, there are two types of concerns, right? There are two types of concerns. First, the concerns which are trading concerns, means they purchase and they sell goods and services. Their intention is to earn the profit. Their intention is to earn the profit. Objective is to earn the profit. Example, sole proprietorships, partnerships, companies other than section 25 companies. All those are, right, trading concerns. And there are non-trading concerns, right, or not for profit organizations. And their objective is to render the services to the members of the organization. Okay? So then such concerns whose objective is not to make the profit but to serve the purpose for which it has been registered, it has been formed, is called as, right, not for profit organizations, NPOs. So we learn the accounting or preparation of the final accounts of the sole proprietorship in 11th. In 12th first chapter, we learn preparation of the final accounts of the partnership concerns. Partnership, if you refer the section 4 of the Indian Partnership of 1932, the definition of the partnership is relation between the persons to share the profit between them in their agreed ratio from the business carried on by all or any one of them acting for all. To share the profits from a business carried on by all or any one of them acting for all. Share the profit. The definition of the partnership itself says sharing of the profit. So it is profit intended. Profit objective है उस organization का. Sole proprietorship, partnership and companies are also for the profits except section 25 companies. जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, सेक्शन 25 कंपनीज आर द कंपनीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर द कंपनीज, राइट, whose objective is a charitable purpose. You can do the charity, you can serve the society, you can serve your members by forming NPO, not for profit organizations, and one of the way is incorporating your organization as a company. And that company will be registered as section 25 company. क्या company बोल रहा है? Section 25 company. And in this chapter we have to understand the preparation of the final accounts of the not for profit concerns. NPOs के final account समझना है. NPOs, like other trading organizations, do maintain the accounts, but NPOs maintain receipt and payment account. Generally, the transactions of the NPOs are on the cash basis. Almost maximum of the transactions are on a cash basis, and they maintain receipt and payment account, right? Similar to your cash book that you used to maintain in your 11th, right? Which shows receipts, which shows payments, cash receipts, bank receipts, cash payment and bank payments. So NPOs maintain receipt and payment account, and with the help of the receipt and payment account, we have to prepare final accounts of the NPOs. The final accounts of profit making organizations includes final accounts of profit making organization includes trading account, profit and loss account, and the balance sheet. Trading account gives you gross profit or gross loss. Profit and loss account gives you net profit or net loss. And balance sheet talks about financial position. What do you mean by financial position? What business owns assets and what business owes to others liabilities.
They maintain proper sets of books of account under double entry system, like journal, that is subsidiary books, right? Ledgers, and from that they extract trial balance, and with the help of the trial balance we prepare final accounts, which includes trading account, P&L account, and balance sheet. There is a manufacturing account as well, but that is not in our syllabus because we are learning trading organizations. We are not learning the final account of manufacturing organization. In CA foundation, in sole proprietorship final accounts, we will also learn the manufacturing account. अपने सिलेबस में नहीं, हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखते हैं, हु परचेस एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखते हम लोग। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है which is carrying on a business as a sole proprietorship or a partnership, they will maintain the manufacturing account at the same time. Sir, what about the companies? सर आपने दो कंपनीज बोले, एक कंपनी आपने हमें बोला कि some companies other than section 25 companies, right, they are there to earn the profit. Their objective is to make the profit. I do agree, their objective is to make the profit. However, section 25 companies, right, do not, right, operate for the profit purpose, but they operate for the charitable purpose. So does the companies maintain जो profit के लिए, does they maintain manufacturing account, trading account, profit loss account, and balance sheet? Try to understand, sole proprietorship are not governed by any act, and therefore there is no specific requirement of the final accounts format. कोई एक specific format नहीं उनके लिए कि यही फॉर्मेट में आपको फाइनल अकाउंट्स करने। सो हम टी फॉर्म में करते हैं जो हमने 11th में सीखा, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। अगर मैन्युफैक्चरिंग सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे बिफोर ट्रेडिंग अकाउंट। सो मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर P&L एंड सबसे एंड में बैलेंस शीट। अगर पार्टनरशिप फर्म है, प्रॉफिट मेकिंग, मतलब पर्पस इज प्रॉफिट मेकिंग। इसका मतलब ये नहीं कि दे आर नॉट इनटू लॉसेस, ये मत समझना। प्रॉफिट इंटेंशन है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, दे में सफर द लॉसेस। हमने देखा है कि देयर कैन बी लॉसेस एज वेल, राइट। पर्पस देखो, पर्पस मतलब प्रॉफिट मेकिंग वाले हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे ऐसे नहीं, दे में आल्सो सफर लॉसेस। एंड द एनपीओज जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, दे में अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड अ सरप्लस। सो मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूं, एक्चुअल रिजल्ट डिपेंड्स। लाइक यू वांट टू अपीयर फॉर एन एग्जाम एंड यू वांट टू पास, ये आपका इंटेंशन है, बट रिजल्ट में भी फेल। वैसे ही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनका इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना, दे में एंड अप सफरिंग द लॉसेस। एनपीओज जिनका ऑब्जेक्टिव है नॉट फॉर प्रॉफिट, राइट, सर्विंग द सोसाइटी, सर्विंग देयर कॉज, they may end up even earning profit. Like BCCI मैंने एग्जांपल दिया, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टिल, मुझे बोलने की जरूरत नहीं बीसीसीआई कितना प्रॉफिट कमाती है, एवरीबॉडी नोज। समझ में आ रहा है? ICI, it is there to serve the chartered accountancy profession, regulate the chartered accountancy profession. They make tremendous amount of the profit. उनके रिजर्व्स देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। BCCI. So what I want to tell you, charitable hospitals, don't say Dinanath Mangeshkar charitable hospital does not earn profit or surplus. They do earn, but the intention is not to earn that. Maybe through their services they are earning. Obviously they charge some fees at least to recover their cost. If you don't recover the cost, how the organization will survive or continue? So obviously they will be charging the fees. ऐसे ये मत बोलना कि they don't charge the fees. They do charge the fees. एक पार्क है जहां पे लोग घूमने जाते हैं, that is not for profit organization. Suppose they do charge entry fees because at least वो मेंटेन तो हो जाए, उतने तो उन्होंने कमाना चाहिए। टेम्पल है, राइट, it is not for profit organization. Don't say Dagdusha does not earn profit. It is a not for profit organization, it's a trust. But does it mean that they are not earning profit?
अरे उनके प्रॉफिट तो सोचो मत, शिरडी, बालाजी टेम्पल, अगर आप बोलो मुझे, दे ऑल आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यस, उनका पर्पस जो है वो सर्व करते हैं, एंड while serving that purpose they are earning profit, there is no problem. इंटेंशन क्या है ये देखो, इंटेंशन इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। आप बोलोगे सर वो लोगों को खाना देते, ये करते, वो करते, आई डू एग्री, आई डू एग्री कि वो करते हैं, बट स्टिल दे आर मेकिंग द प्रॉफिट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वो प्रॉफिट कर रहे हो इलीगल है, ऐसे नहीं, इंटेंशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, इवेंचुअली प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, सो व्हाट इज देयर हिडन मोटिव, राइट? व्हाट इफ हिडन मोटिव, देखो मैं हिडन मोटिव वगैरह मैं एज ए जो प्लेन दिखता है, जिस क्या बोल के आपने रजिस्टर किया है, एनपीओ बोल के रजिस्टर किया है, क्या पर्पज है आपका? एक कॉज सर्व करना, लाइक बीसीसीआई किस लिए? टू रेगुलेट द क्रिकेट इन इंडिया। आईसीआई क्यों है? टू रेगुलेट चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हॉस्पिटल आपने किया है क्यों? टू सर्व द पेशेंट्स। आप रजिस्टर करते टाइम आप बोलते हो कि मुझे इस पर्पज के लिए करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी कैन स्टार्ट ए क्लासेस एज कि हम एजुकेशनल फैसिलिटीज देने चाहते हैं एट ए अफोर्डेबल प्राइसेस, कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, कर सकते हो ना, मैंने किधर नहीं बोला। बट जब आप रजिस्टर करने जाते हो विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज, विद द राइट जो भी अथॉरिटीज रहेंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव दैट इट इज फॉर राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब आपका इंटेंशन एक्चुअली ट्रू है। दूसरा, देयर कैन बी कॉलेज एल्यूमिनी ग्रुप होते हैं, पता होगा आपके आपके स्कूल में वगैरह, आप वहां पे 1000 रुपीज ईयरली फीस पे करते हो। मेरे मैं जिस स्कूल से हूँ, आई यूज टू लिव इन हॉस्टल, हमारा गुरुकुल का स्कूल था, वी पे 1000 रुपीज ईयरली मेंबरशिप फीस एल्यूमिनी की। आई नो व्हाट दे आर डूइंग, वो हम लोगों से पैसे लेते हैं, एंड जिनको जरूरत है स्कूल के लिए एक्टिविटीज करेंगे, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज करेंगे, जिनको पैसों की जरूरत है हायर एजुकेशन के लिए, उनको वो स्कॉलरशिप देंगे। इट इज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी मेंटेन डिसेंट पेमेंट अकाउंट, आई ओनली साइन, मैं खुद साइन करता हूँ। एक्चुअली वो साइन करने के लिए तो मैंने एक्चुअली मेंबरशिप ली है, ऐसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट लिया मैंने, अदरवाइज आई डोंट साइन अदर्स, बट वो खाली आई नो द पर्पज, इसलिए मैंने मेंबरशिप ली है। सो उनकी बैलेंस शीट, उनके रिसीव पेमेंट मैं साइन करता हूँ, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, करता हूँ मैं वो। मेरे गांव में आओगे तो हमारे गांव की ट्रस्ट है, जो सब लोगों राइट जो बाहर गए हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं, दे रेज द फंड्स एंड लाइक विलेज के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, होते हैं ऐसे, समझ में आ रहा है? सो सच एसोसिएशंस कैन बी ट्रीटेड एज नॉट फॉर प्रॉफिट। देखो इवेंचुअली यू अर्न प्रॉफिट, इट इज ऑलवेज वेलकम, इट इज ऑलवेज वेलकम। सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटी, सोसाइटी आपकी जो जो आपने सोसाइटी फॉर्म की है, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, वो सोसाइटी का काम प्रॉफिट कमाना है, आपको सर्विस देना है, आपको सर्विस देना, एंड दे रिकवर द फीस, मेंटेनेंस उतना ही लेते हैं जितना रिक्वायर्ड है। हाँ, मे बी थोड़ा फार वो सरप्लस कमाते होंगे, बट इंटेंशन सरप्लस कमाना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, इंटेंशन बोल रहा हूँ। एंड क्या है आई डोंट नो, एंड मे बी सरप्लस हो सकता है, मे बी डिफिसिट हो सकता है। सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो सेक्शन 25 कंपनीज और अदर कंपनीज, डिफरेंस क्या है? अदर कंपनीज right are registered under companies act to earn the profit, and section 25 companies are also registered under companies act, but as section 25 companies their purpose is right like charity, serving the cause for which it has been registered, and for them they have to maintain the final accounts in the prescribed format given in the companies act। जैसे मैंने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई फाइनल अकाउंट्स का स्पेसिमेन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है, एंड देयरफॉर देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर द सोल प्रोप्राइटर्स, एंड देयरफॉर
उन राइट हम उनको टी फॉर्म में मेंटेन करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट टी फॉर्म, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट. Partnerships are governed by Indian Partnership Act 1932, but the act does not talk about right maintaining of accounts. Act does not talk about the presentation of the final accounts. Act does not talk about the format of the final account. तो उसके लिए भी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है टी फॉर्म वही फॉलो किया जाता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा. कंपनीज के लिए this specific format, this is specific format in which they have to maintain the final accounts. तो उनको वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है. तो इसलिए वो जो फॉर्मेट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन एंड देयरफॉर जो हमारे सिलेबस में है वो अदर देन 25 सेक्शन 25 कंपनीज. तो सेक्शन 25 कंपनीज आल्सो एनपीओज, बट उनके फाइनल अकाउंट्स हम नहीं कर रहे बिकॉज उनके लिए जो फॉर्मेट है राइट वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. आई कैन शो यू सेक्शन 25 कंपनीज. अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, ये ओल्ड सेक्शन है एक्चुअली. लेट मी चेक द न्यू सेक्शन. आई शुड गेट बेयर एक्ट. ठीक है, अब देखो सेक्शन 8 पहले वाला सेक्शन 25 राइट. ये देखो सेक्शन 8 कंपनीज नाउ, ठीक है. 1956 में सेक्शन 25 कंपनीज बोलते थे, अब सेक्शन 8 कंपनीज. देखो रहेगा यहाँ पे. आई विल शो यू सेक्शन 8. सेक्शन 8 ये डेफिनेशंस हैं. सेक्शन 8 क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स where it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of persons proposed to be registered under this act as a limited company has in its object the promotion of the commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of the environment, or any such other object. Intends to apply its profit, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, if any, अगर वो प्रॉफिट कमाते हैं, और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, वो जो प्रॉफिट कमाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो फिर से यूज करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए. जैसे इन सोल प्रोप्राइटरशिप और इन नॉर्मल कंपनीज अदर देन सेक्शन 8 कंपनीज एज पर न्यू एक्ट इट इज सेक्शन 8 कंपनीज राइट. वो जो प्रॉफिट्स आते थे डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. यहाँ पे वैसे नहीं होगा. They will plug back that profit and they will continue to achieving their objectives. So जो प्रॉफिट कमाएंगे वो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा जाएगा. आगे intends to apply its profit if any or other income in promoting its objects and intends to prohibit the payment of any dividend to its members. मतलब जो प्रॉफिट कमाया जाता है कंपनीज अर्न प्रॉफिट्स and they distribute that profit to the shareholders in the form of dividend. But section 8 companies as per new companies act और section 25 companies as per 1956 act, कोई लोग section 25 companies बोलते हैं, कोई अभी तो section 8 companies है राइट. सो उनके केस में
they will not declare dividend. मतलब जो भी profit है वो कंपनी के पास ही रहेगा, शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, and that profit will be used for those objectives. The central government may, by the license issued in such a manner as may be prescribed, and on such conditions as it deems fits, allows that person or association of persons to be registered as a limited company under this section without adding to its name the word limited, or as the may be the word private limited. And therefore, thereupon, the registrar shall, on application in the prescribed form, register such person or association of person as a company under this section. What they want to say? Ki such companies, once you registered, right, as a section 8 companies, the register of the companies will issue a license. Central government will issue a license once register of the companies, right, approves your registration. No need to use the word private limited or limited in front of you, like Reliance Industries Limited. जैसे आगे लिखा गया है लिमिटेड, अरे टाटा मोटर्स लिमिटेड, वैसे यूज करने की जरूरत नहीं. Are you getting my point? So now it is section 8 company. Earlier it is to be section 25 company. They have revamped the Companies Act in 2013. ठीक है? So what I want to tell you. So उनके लिए there is a specific format. अब दिखाता हूं मैं यहाँ पे रहेगा. Let me show you. Schedules है. I will take you to the schedules. इंडेक्स में एंड में रहना चाहिए. Yes. Schedule 3. I will show you. पार्ट 1 चाहिए मुझे. शेड्यूल 3 किधर है? ऊपर रहेगा. ये वही है, इधर लिखा होगा. शेड्यूल 3. General instructions for the preparation of the balance sheet and statement of profit and loss of a company. Companies are required to follow Schedule 3 to prepare final accounts. Schedule 3 में उन्होंने दिया है, this is a format of part 1 is a format of the balance sheet. It is a prescribed format. उसी format में उनको final accounts करने होते हैं. This is the format. नीचे P&L का फॉर्मेट दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखो, दिस इज स्पेसिफिक फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में करना है. तो सेक्शन 25 कंपनीज को या सेक्शन 8 कंपनीज को नाउ हम इस फॉर्मेट में हमें क्या करना होगा? P&L करना पड़ेगा. ये फॉर्मेट हमारे सिलेबस में नहीं है, एंड देयरफॉर आई से सेक्शन 8 कंपनीज भले वो एनपीओज है, हम उनके फाइनल अकाउंट्स नहीं करने वाले. सो हम अदर देन कंपनीज जो एनपीओज होते हैं उनके फाइनल अकाउंट्स करने वाले. अदर देन कंपनीज जिनके जो एनपीओज है हम उनके फाइनल अकाउंट्स करने वाले. आगे मैंने बोला कि एनपीओज मेंटेन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दे मेंटेन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट. द रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स एंड द पेमेंट, राइट, पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. जनरली कोई भी रिसीट ले लो, रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, revenue receipts and capital receipt. Revenue receipt is a receipt which is recurring in the nature, and it is because of your main course of action. It is the main source of the income. Revenue receipts are the income, sources of income. Means you are not liable to return it. You are not liable to return it. ये आपकी है. Like example, a trader है, he sells goods and he receives income, that is revenue receipt. Airtel provides services, it is their revenue receipt, income. A mobile Shopee wala sells goods, it is their income. Dividend received, interest received, commission received, discount received. They are regular in the nature, they are recurring in the nature. Those receipts are revenue receipts. Revenue receipts means income. In case of NPOs, like you can say like schools are the NPOs.
tuition fees received will be treated as the revenue receipt. Exam fees received, term fees received. For clubs like Rotary Club, right? Membership fees received, subscription received is regular source of income, revenue receipt. For a charitable hospital, fees received from the patients is revenue receipt. Donations received by temple or any NPO, normal donation without any condition is your revenue receipt. On the contrary, capital receipts are those inflows which are non-recurring in the nature. It is not the source of income. ये source of income नहीं है. Try to understand. Capital receipts arises because of two things. One, either you borrowed the funds, means your liability will increase. You will receive the money, simultaneously your liability will increase. Or you have sold your fixed assets or investment, तब जो inflow होता है, it is not regular in the nature, it is non-recurring in the nature, it is not the main source. Try to understand. Such receipts are called as capital receipts. So capital receipts, some receipts increases your income, they will increase cash and bank balance, they will increase incomes, they are called as revenue receipts. Some receipts will increase your cash and bank balance, they will also increase your liabilities, they are capital receipts. And some receipts will increase your cash and bank balance, but they will decrease your investments and fixed assets, they are capital receipts. Try to understand. So revenue receipts are the incomes and therefore they will be transferred to income side. The capital receipts which increases liabilities will be added in the liabilities. Capital receipts which decreases your fixed assets and investments, right, will be deducted from the fixed assets and investment respectively. So receipts तीन जगह पे जाएंगे. Revenue receipts, incomes, income में add होंगे. Capital receipts related to increase in liabilities, liabilities में add होंगे. And receipts, capital receipts which are because you sold the assets will be deducted from the assets. Similarly, there are two types of the payments or expenditure. Revenue expenditure and capital expenditure. What is the main difference between revenue and capital? Capital expenditure are those expenditure which are long-term benefit. They are non-recurring in the nature. They are long-term benefit. What do you mean by long-term benefit? You make the payment, but it will give benefit not only in the current year, but it will give benefit over a long period of time. 2 years, 3 years, 5 years down the line. Purchase of fixed asset is the best example of the capital expenditure. Because the fixed assets purchased gives benefit not for the 12 months, it gives benefit beyond the 12 months. So such expenditures which creates the benefits, which add the efficiency, increases the efficiency, productivity are called as capital expenditure. In short, they are assets like fixed assets. They increases the productivity, efficiency, purchase of fixed assets. Expenditure to procure fixed assets or to increase the capacity, productivity of existing fixed assets are called as capital expenditure. मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल प्रभा थिएटर पुणे में पता है सबको. प्रभा थिएटर आई थिंक पता होगा, या किसको प्रभा थिएटर नहीं पता है? रेज द हैंड जिसको पता नहीं है. Someone who doesn't know the Prabha Theatre. अच्छा, there are some Prabha Theatre में मराठी मूवीज लगती है. मराठी मूवीज लगती है एबीसी में. इट इज नोन फॉर मराठी मूवीज. ठीक है, एबीसी अप्पा भवन चौक में. वहां पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, वहां पे ठीक है आई अंडरस्टूड. कोई लोग है जिनको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, इट वॉज ए सिंगल स्क्रीन थिएटर इनिशियली. सिंगल स्क्रीन थिएटर. Later on they decided to create a multiplex, मतलब 2-3 स्क्रीन करना है. Now उन्होंने उस थिएटर को राइट
स्ट्रक्चरिंग किया उसका, रिस्ट्रक्चर किया उसको, एंड राइट उन्होंने उसमें 2 स्क्रीन कर दिए. नाउ द कैपेसिटी इंक्रीज, 2 स्क्रीन हो गए, नंबर ऑफ ऑडियंस विल इंक्रीज, दैट विल जनरेट रेवेन्यू, एंड दैट उन्होंने जो एडिशनल स्क्रीन लगाई वहां पे, उसका फायदा उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किया है वो 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा. So that expenditure is on existing asset to increase the capacity, increase the efficiency. That expenditure will be called as capital expenditure. And उस थिएटर के बाहर जो सिक्योरिटी वाला बैठा है उसको आप लोग को एवरी मंथ सैलरी देनी है. वो जो एक्सपेंडिचर है दैट गिव्स बेनिफिट ओनली फॉर दैट मंथ, नॉट मोर देन 1 year. The salary paid to security guard is revenue expenditure, but the expenditure incurred to install a new screen and all those related expenses creates long term benefit, they are capital expenditure. थिएटर है, उन्होंने बालकनी डाल दी ऊपर. सो नाउ उसी थिएटर में नाउ एडिशनल ऑडियंस कैन सीट. दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज द कैपेसिटी. ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए है, कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, इफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, अल्टीमेटली दे इंक्रीजेस रेवेन्यू. सच एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. डेली नहीं होते वो, कभी कभार होते हैं, नॉन रिकरिंग इन द नेचर. अमाउंट पे मत जाओ, अमाउंट बड़ी इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट नेसेसरी. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अमाउंट बहुत बड़ी रहती है, however right the benefit is not like long, you have to recur it again and again. It is a revenue expenditure. Are you getting my point? Repairs and maintenance is a revenue expenditure, but such repairs which increases efficiency, which increases capacity are capital expenditure. दूसरा एग्जांपल, यू परचेज द बाइक. आपने बाइक परचेस की, तब जब परचेस करते टाइम आपने आरटीओ के चार्जेस पेड किए, आपने इंश्योरेंस पेड किया, सब जो एक्सपेंसेस किए दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हेल्प्स यू टू क्रिएट द असेट. यू गेट एन असेट, फिक्स असेट, एंड देयर आफ्टर एवरी 6 months या एवरी 3 months आप उसको सर्विसिंग करते हो एंड यू पे फॉर दैट. दैट सर्विसिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्यों? Because that helps you to maintain the efficiency. Expenditure to maintain the efficiency is revenue expenditure, normal expenditure, recurring expenditure, they are expenses. But वो expenditure जो efficiency increase करते हैं उनको capital expenditure बोला जाता है. आपने एक बाइक ले ली और आप वो बाइक चला रहे हो, बाद में आपकी शादी हो गई, ठीक है, 2 लोग तो इजीली बैठ रहे हैं, बाद में आपको बच्चा हो गया, आपने साइड कार लगा दी. The expenditure on the side car is to increase the capacity. That will increase the capacity. 3 लोग बैठेंगे. Try to understand that expenditure is asset, not expense. Try to understand. But आप उसको हवा भरवाते हो, पेट्रोल डालते हो, उसको सर्विसिंग करते हो, वो एक्सपेंसेस असेट की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करते, ना ही इफिशिएंसी इंक्रीज करते. दे हेल्प यू टू मेंटेन. जो कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, इफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड जो एक्सपेंसेस वो मेंटेन करेंगे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है. सिंपल वर्ड्स में, अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको सिंपल बोलता हूं. एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, परचेसेस, कैरेज, वेजेस, राइट, दे आर राइट फॉर शॉर्ट टर्म. बेनिफिट्स expires within 1 year. They are expenses. Purchase of fixed assets, addition in the fixed asset, those expenditures are capital expenditure. Assets मतलब capital expenditure, expenses मतलब revenue expenditure. So मैं आपको समझा रहा हूं. So अब देखो, हम जब expenditure करते हैं, my cash or bank balance will decrease. Cash or bank balance will decrease. So expenditure or payments decreases cash and bank balance. And if they increase expenses, they are called as revenue expenditure. So cash and bank balance decrease होगा, expense increase होगा. कोई एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से कैश एंड बैंक बैलेंस कम होता है और फिक्स असेट्स इंक्रीज होते हैं, या यू इन्वेस्ट मनी, they will be treated as capital expenditure. And some payments decreases cash and bank balance and also decreases liabilities. Repayment of the loan example. ठीक है.
सो पेमेंट्स तीन जगह पे जाएंगे. द पेमेंट्स विच रिजल्ट्स इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में ऐड होंगे. द पेमेंट्स विच इंक्रीजेस फिक्स असेट्स विल बी एडेड इन द फिक्स असेट, एंड द पेमेंट्स which decreases the liabilities will be deducted from the liabilities. So मैंने ये डायग्राम समझाई थी आपको, and the diagram is very important. मैं यहाँ पे एक बार फिर से उसको शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ, बिकॉज ये अपना बेस है. ये समझ में आ गया तो हर चीज समझ में आ जाएगी. मैंने आपको बोला था रिसेंट पेमेंट विल एक्ट एज ए ट्रायल बैलेंस फॉर यू. क्या बोला मैंने? रिसेंट पेमेंट, राइट, acts as, right, trial balance for you. Means every item of the recent payment will have one unique effect in the final accounts of not-for-profit organization. Not-for-profit organizations final accounts includes, right, income and expenditure account, just like P&L account, and balance sheet. In trading organizations, to find out profit and loss, we prepare trading and P&L account. In NPOs, to find out surplus or deficit, we prepare income and expenditure account. We don't call it is a profit or loss because intention is not profit. So we say income and expenditure account. Balance sheet is same. So this is your, right, receipt side. It increases your cash and bank balance. These are your payment side of your receipt and payment. एक और important मैंने उस दिन बोला था कि receipt payment is actually not a account. ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बिकॉज जो टीचर सिखाते हैं ना उनको ही नहीं पता है कि ये रिसीव पेमेंट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट. आपके राम नाम में राम होने से आप राम नहीं हो जाते. आपके नाम में सचिन तेंदुलकर सचिन होने से आप सचिन तेंदुलकर नहीं बनते. आप इसके नाम में अकाउंट है, डज नॉट मेक इट एन अकाउंट. रिसेंट पेमेंट इज अ स्टेटमेंट conceptually. However, in your 12th HSC board, they have said it is a real account. तो आप आंसर लिखते टाइम रियल अकाउंट लिखो, बट दैट इज रॉन्ग. इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स, it is statement of payment, that's it. And with that we prepare income and expenditure account. And second, this is your balance sheet. Income and expenditure is a nominal account, and this is balance sheet. Debits are expenditure. We don't write particulars rupees, we write expenditure rupees. Credits are incomes, we write income and rupees. Liabilities, liabilities and assets, बराबर ना बैलेंस शीट में. सो ध्यान देना. Receipts, some receipts increases income, they are added in income. हम उनको इनकम में ऐड करेंगे. Some receipts increases liabilities. Your borrowed money example. If they increases liabilities, I will post them in the liability, or I will present them in liability. I will add them in the liability. And some receipts are because you have sold fixed assets and investments. If they decrease the assets, I will deduct them from the asset side. So every item of recent payment has one unique effect. मैं फिर से बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस का काम रिसेंट पेमेंट करेगा. तो एवरी आइटम ऑफ द रिसेंट पेमेंट विल हैव वन यूनिक इफेक्ट. कसम खा लो कि जो भी रिसेंट पेमेंट में हम एक ही जगह पे लिखेंगे, सच दैट डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट. सो रिसीट साइड पे तो चलो डेबिट साइड पे ऐसे बोल के चलो, तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट रहेगा. या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट पे, दैट इज इनकम साइड पे. लाइबिलिटी में ऐड करना मतलब क्रेडिट, एंड असेट से माइनस करना मतलब डेबिट. लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, उनमें ऐड हो रहा है तो क्रेडिट. असेट्स आर डेबिट, उनसे माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट. ठीक है. द अदर साइड, दैट इज द पेमेंट साइड. पेमेंट्स आर for three purposes. Some payments increases or expenses, those are to be added in the expenditure side.
some payments decreases the liabilities because you repay them. Outstanding salary paid, outstanding rent paid, loan repaid. Are you getting my point? Those are decrease in the liabilities. Agar if they decreases the liabilities, obviously I have to deduct them from the liabilities side. मुझे liabilities से उनको minus करना होगा. And some payments creates the assets. They add your fixed assets and investment. I will add them in the assets. So ध्यान देना कौन सा आइटम किधर गया है. Receipt side, add in income, it is income. Add in liability if it is a results in the liability, and if it results in decrease in asset, minus from asset. Payment side, if they results in the expenses, add in expenses. If they results in the repayment of the liabilities, minus from liabilities. And if they results in increase in asset, add in asset. Clear है? So, और हमने कोई examples लिए थे, उस दिन मैंने कुछ examples किए थे. So I will also would like to take more examples. Okay. Yes. Okay. Now, suppose this is an example. ध्यान देना. You are Tarun Mandal, established on 1st April 2015. And the following is the accounting year or accounting information for their first year 15-16. Prepare income and expenditure account and the balance sheet for the year ending 31st March 2016. 15-16 is my first year. 15-16 is my first year. They are given a receipt and payment account maintained by the NPO. उन्होंने receipt and payment account maintain किया है, वो उन्होंने दिया. Receipt side पे increase in bank and cash balance. Payment side is a decrease in cash and bank balance. देखते हैं. अब ध्यान देना. Okay. I will unmute anyone. हाँ ज्योति मैडम, you have to tell me. ठीक है. Yes, sir. Am I audible? Yes. Fees. Income. Yes, I have to add them in income. Perfect. Income. Income. Interest on investment income. Yes, I will add in. Donation income. Yes, if nothing is mentioned, I will add in income. ठीक है. If nothing is mentioned, I will treat it as an income. अच्छा बराबर. Member subscription. Income. Yes. So initially you had zero balance with you. Opening balance zero था तेरा. Opening balance zero था because you just started the NPO. Business. हाँ, तो zero balance था. You received this much. Your total receipts 90,050. Total तेरे पास कितना है? 1,90,050. बराबर. अब तू Yes. Yes मैम बोलो. Land and building. Land and building asset side. Okay, let me again share my screen. Just a second. Just a second, ma'am. Yes, sir. Okay. Now, so you had total 1,90,050 for your disposal, right? हाँ. अब तूने payment Yes. बोलो. हाँ. Land and building. Asset side. Okay, good. Increase in asset. हाँ. Yes. Office rent expense side. Increase in expense. Yes. Printing and stationery expenditure. Increase in expense. Perfect.
salaries, expenditure, increase in expense. Perfect. Investments, asset side. Yes, increase in asset. Newspapers and periodicals, expenditure. Yes. Plant and machinery, asset side. परफेक्ट. एंड ये सब पेमेंट करने के बाद तेरे पास अब कितने बाकी हैं? 15,890. एट द एंड ऑफ द ईयर तेरे बैंक बैलेंस 15,890 है. कैश एंड बैंक बैलेंस विल बी असेट्स, क्लोजिंग असेट्स. बराबर? Yes, sir. कैन यू टेल मी, अगर तुझे लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन देना है तो डेप्रिसिएशन देगी? Sorry, sir. इफ यू हैव टू प्रोवाइड अ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन देगी? व्हाट इज द 9 months. नो डेट ऑफ परचेस क्या है मैम? लैंड एंड बिल्डिंग डेट ऑफ परचेस 1st July 15. No. Oh, land and building. लैंड एंड बिल्डिंग या 1 year. फर्स्ट ईयर. ये सो फर्स्ट अप्रैल को परचेस किया तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन. सो कैन आई से Yes. एंटायर ईयर फर्स्ट अप्रैल? Yes. सो अगर उस पे डेप्रिसिएशन देना है, लिखा होगा उन्होंने कहाँ पे, तो शायद लिखा होगा लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से डेप्रिसिएट करना है. ये काम कर रहा है. मैं बोलूं आपको, दीज आर क्रेडिट बैलेंसेस समझने के लिए, एंड दीज आर योर डेबिट बैलेंसेस. सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि अगर किसी अकाउंट के डेबिट पे है, रिसेंट पेमेंट के डेबिट पे है, मतलब इनको क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा ना. तो these are credit balances of the trial balance and these are debit balances of trial. लैंड एंड बिल्डिंग को कौन सा यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग है, मतलब रिसेंट पेमेंट को क्रेडिट है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? डेबिट. ऑफिस Debit. रिसेंट पेमेंट को क्रेडिट है, बाय ऑफिस एंड ऑफिस रहेगा. सो दीज आर डेबिट. को देखते टाइम उल्टा देखना है, लाइक दीज आर क्रेडिट बैलेंसेस एंड दीज आर योर डेबिट बैलेंस. बराबर? सो Yes, sir. पे लिखा है 10% डेप्रिसिएशन देना है, तो 35,000 का 10% कितना आएगा मैडम? 3,000. 500. जो वो डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर. P&L जैसे एड इन एक्सपेंस माइनस फ्रॉम असेट. अच्छा मैडम, इस पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन में? Plant and machinery, sir. हाँ, 9 months. 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देगी. परफेक्ट, बिकॉज हमने परचेस की 1 जुलाई से और हमें डेप्रिसिएशन देना है 31 मार्च 16 तक. परफेक्ट. वो जो भी है 5% फॉर 9 मंथ्स हम ढूंढेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. परफेक्ट मैम. अच्छा और कुछ क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या? अच्छा ठीक है. नो थैंक यू मैम. Thank you, sir. मैं एक अभी थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया मैंने, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आई एम क्रिएटिंग ए थॉट प्रोसेस. एक बार समझ में आ गया ना, आप इजीली क्वेश्चन मार दोगे. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन. सो मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ. कौन है जो? निधि तेरा है क्या माइक, या आज नहीं है? ठीक है, किसी को भी मैं करता हूँ. तेजल. यस या मैम. Now, let me first read it out. Following is the recent payment account of the Senior Citizens Association Mumbai started. ठीक है, 1st April 15 को. तो मुझे you have to help me out. ये जो recent payment है, इसको तुझे मुझे समझाना है. Whether it is income, expense, asset, liability. या मैम बोलो. टू सब्सक्रिप्शन रिसीट. इसी से पहले हाँ, ये क्या रहेगा? सब्सक्रिप्शन रिसीट क्या रहता है? तेजल आई कांट. नहीं, ओके नो प्रॉब्लम. शायद से कुछ प्रॉब्लम रहेगा. किसी को पकड़ू. लेट मी चेक. कुछ तो रह सकता है माइक में. नो नो यू आर नॉट ऑडिबल तेजल. सो एक सेकंड मैं फिर से करता हूं तुझे. हाँ अब देख. So now, या बोलो. बोलो सब्सक्रिप्शन रिसीट क्या रहेगा मैम? अगेन यू आर नॉट ऑडिबल.
ठीक है, ठीक है, जाने दो। निधि, हाँ निधि बोलो। Sir, I'm audible. यस यस, Sir, subscription receipt income, या परफेक्ट इनकम, एडिशन इन इनकम, या additional income, Hmm. 2 entrance fees income, या इनकम। अब भी मैं इनकम बोल रहा हूँ। समटाइम्स इन द क्वेश्चन दे से एड इन कैपिटल, ऐसे लिखते हैं वो, लाइक यहाँ पे लिखा है देखो, entrance fees and donations are to be capitalized. To be capitalized means to be added in the capital fund, to be added in the liability side. But अगर वो एडजस्टमेंट नहीं है तो entrance fees इनकम है हमारे लिए, ठीक है, वो इग्नोर करो एडजस्टमेंट्स। अभी जो है वो समझो, मैं आपको हर चीज क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इनकम है, आगे डोनेशंस को हम क्या बोलेंगे, इनकम। income, हाँ, बट अगर उन्होंने हमें कैपिटलाइज करने को बोला है तो इनको इनकम में capital fund, कैपिटल फंड बोलेंगे, ठीक है। आगे एफडीज, पेमेंट फॉर एफडीज, fixed deposits, asset, या मतलब तूने एफडी में इन्वेस्ट किया, एसेट इंक्रीज हो गई, परफेक्ट। by traveling expenses, expenditure, राइट, by furniture and fixtures, asset, या इट इज यू हैव परचेज द फर्नीचर एंड फिक्चर्स, परफेक्ट। हाँ, by electricity expenses, expenditure, एक्सपेंडिचर, परफेक्ट by office rent expenditure, परफेक्ट by printing and stationery expenditure, परफेक्ट, by salaries expenditure, यस, by charity expenditure, या एंड सब पेमेंट करने के बाद तेरे पास अब आज कितने बाकी हैं, आज मतलब ये आज की तारीख है बराबर ना, एंड में कितना बाकी है, 18,500, ये क्या रहेगा जो बाकी हो, एसेट, trading asset, या परफेक्ट, गुड मैम। अब मैडम ये जो मेरा फर्नीचर है कब मैंने परचेस किया बोल, 1st April, हाँ, तो ये इस साल में कितने मंथ का डिप्रेशन आएगा उसमें, पूरे साल का, पूरे साल का, राइट, ओके गुड, परफेक्ट। अच्छा, थैंक यू मैम। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड, एंड देन आई विल टेल यू द स्पेसिफिक आइटम्स कैसे ट्रीट करना है उनको, ठीक है। तो ये कोई तो बॉयज में कोई तो ले लो, बॉयज बॉयज बॉयज, किसको पकड़ू, बॉयज में आई डोंट, किसको पकड़ू मैं, एक सेकंड, हाँ चल इसको पकड़ता हूँ। पलकेश किधर है, हाँ पलकेश, आई विल आस्क एडिशनल क्वेश्चंस, हाँ है क्या पलकेश, या गया, यू हैव टू अनम्यूट, शायद से गया क्या किधर, कोई लोगों के पास माइक नहीं रहते, ओके अच्छा ठीक है, एयरफोन्स, अच्छा ठीक है, ओके नो इश्यूज, एक सेकंड, मैसेज है उसका, किस जिसको मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ फिर, हर्षदा नहार मैडम, चलो है या गई मैडम आप, हु सर, बट फिर अनम्यूट करना, अच्छा ठीक है, चलो दीपा मैडम, दीपा पंडित, Yes, sir. Am I audible? यस हाँ, आई विल आस्क यू एनी क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में, हाँ Yes, sir. दे हैव गिवन यू बैलेंस शीट ऑन 1st April 15, Yes, sir. they have also given you recent payment for 31st March 16, so ये बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगी या क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगी, व्हाट डू यू थिंक, So फर्स्ट, ये opening balance sheet है. राइट, ये आपका ईयर है, कौन सा ईयर है, 1st April 15 से 31st March 16, बराबर ना, सो Yes, sir. की पोजीशन ये है, बिगिनिंग की पोजीशन है, मतलब आपके ईयर जब स्टार्ट हुआ
तेरे पास कैपिटल था 2,51,250 का, ओवरड्राफ्ट था 5,410 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल थी 2,500, यहाँ पे पेएबल थी, बिगिनिंग में पेएबल थी, तो साल भर में पेड हुई होगी ना मैडम, या पूरे साल वैसे ही रखोगे? सब पेड हुई होगी। होपफुल होनी चाहिए, राइट? आगे गारंटी नहीं दे सकता बट होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन ठीक है, ये रिसीव्ड एडवांस होगा, अभी तक मैं सब्सक्रिप्शन पे आया नहीं तो रहने दो। प्लेग्राउंड, तेरे पास 1,00,000 रुपए की ग्राउंड था बिगिनिंग में, इक्विपमेंट्स थे 55,000 के, एफडीज थे 50,000, कंज्यूमेबल्स मतलब स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 27,000 ओपनिंग स्टॉक। ये स्पोर्ट्स क्लब है शायद से, यस, बांद्रा में, बहुत फेमस है बांद्रा में ये, 27,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये रिसीवेबल रहेगा, लेट इट बी, इसका मैं बाद में समझाऊंगा। एंड ये तेरी कैश इन हैंड थी जो यहाँ पे मैच होगी, बिकॉज रिसीट अकाउंट इज कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो ओपनिंग में 1 अप्रैल को हमारे पास कितनी कैश थी? 16,660 की कैश थी, जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में दिख रही है, बराबर मैडम? चलो यस। अब हाँ, रिसेंट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम, या परफेक्ट, डोनेशन फॉर प्राइज फंड इनकम। इट्स फॉर प्राइज फंड, स्पेसिफिक डोनेशन है। देखो इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे खाली डोनेशन लिखा था, उसका पर्पस दिया था क्या? नहीं, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि इनकम है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि डोनेशन इज फॉर प्राइज फंड, मतलब इन डोनेशन से खाली प्राइज दी जाएगी, बाकी कुछ नहीं। जो टॉप करेगा एथलेटिक्स में वगैरह, स्पोर्ट्स है ना, ये क्या है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो उनके लिए सो दिस, ये डोनेशन आया है विद कंडीशन, इसको खाली प्राइजेस के लिए दिया जाएगा, बाकी कुछ किसके लिए नहीं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन, इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। ओके सर। आगे 2,26,000 बोल। हाँ, टू मेंबर सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम, सैंड्री इनकम भी इनकम में ही जाएगा। राइट, हाँ, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है या रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी है? ये रीपेमेंट है, सो ये उसे कट हो जाएगा। कट हो जाएगा, परफेक्ट, ये इधर कट हो गया, ये पेएबल है, ओपनिंग में लायबिलिटी, ये पेड हो गया, बराबर। आगे परफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, परफेक्ट, बैंक चार्जेस एक्सपेंस, ग्राउंड मेंटेनेंस सर एसेट में ऐड होगा ना? मेंटेन एसेट को मेंटेन करना इज एक्सपेंस, मैं वही बोल रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर टू मेंटेन द एसेट्स, नॉट, अगर इंक्रीज इन एसेट होता तो एसेट है, मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस है, हाँ, इट इज एन एक्सपेंस। स्पोर्ट्स मटेरियल्स परचेज ये एसेट में जाएगा क्योंकि अच्छा ठीक है, इधर लिखा है क्या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ना, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट जैसे, ठीक है। ये स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, ये परचेस एक्सपेंस जैसा रहेगा। अभी तक इसका मैंने बोला नहीं है बट ये एक्सपेंस रहेगा, क्यों? या चल ठीक है, एसेट में ऐड के वैसे भी ट्रीटमेंट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअल में अगर ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की तरह काम करेगा तो ये परचेस की तरह काम करेगा। परचेस किस में आते हैं? एक्सपेंस में आते हैं ना मैडम? यस सर। एक्सपेंस में लेंगे, हाँ। आगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट, या परफेक्ट। अच्छा अब मुझे बोल, एट द एंड ऑफ द ईयर तेरे पास कितने के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रहेंगे? एंड में, एंड में अभी तूने सर ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम लोग ने इस साल में जितना परचेज किया उसके साथ ऐड करेंगे, उतना टोटल होगा। हमारे पास 55,000 का इक्विपमेंट है, बराबर ना? ऑलरेडी इस तारीख पे 55,000 के इक्विपमेंट्स है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में, बराबर। हम परचेस किए कितने के? 44,000। हमारे पास क्लोजिंग में कितने होंगे? 99,000। परफेक्ट, गुड। हाँ, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एसेट में ऐड करना मतलब ओपनिंग एसेट है तो उसमें ये ऐड हो जाएगा, परफेक्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैम, एक्सपेंस या एक्सपेंस। एफडी, एसेट। अच्छा तेरे पास पहले कुछ एफडी थी क्या? सर आप क्वेश्चन ऊपर ले सकते हो। ओके, है ना, ऊपर ही लिया। एक सेकंड ना, मैं चाहे तो इसको थोड़ा ये करता हूँ, दिखेगा तुम लोगों को। हाँ पहली थी, सो वो ओपनिंग में ऐड कर देंगे। ओपनिंग में कितनी थी? 50,000 थी ना एफडी? यस सर। इस साल में कितनी एफडी की? और 1,00,000? एक
तो टोटल एंड में कितनी की एफडी हो गई हमारी? 1,50,000। परफेक्ट। हाँ, तो क्लोजिंग एसेट में अब कितना आएगा? 1,50,000। हाँ बोलो। सैलरी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग इसमें पे हो गई है, सो लाइक आप ये जो 12,500 है ना, इसमें से उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर की 2,500 एंड इस ईयर की रहेगी 10,000। सो ये पेड हो गई, कैंसल। पेएबल है, पेड, कैंसल। हाँ, तो ये 2,500 लाइबिलिटी से माइनस होगा, लाइबिलिटी रिपेड हो गई, और 10,000 इस साल का है, वो किस में जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। एक्सपेंस। नहीं समझ में आता है जिनको, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, राइट। ये अभी मैं खाली एक डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली मैं हर चीज समझाऊंगा। और मैडम ये जो बच्चे है वो क्या रहेंगे? असेट। एसेट्स। गुड। चलो, थैंक यू मैम। नाउ नोट डाउन इंपॉर्टेंट, लिख लेना इंपॉर्टेंट आइटम्स इन रिलेशन टू एनपीओस। ऐसे इसको पढ़ना है, मैंने पढ़ना सिखाया आपको रिसेंट पेमेंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आइटम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीओ। फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड एज इनकम। उसके एडजस्टमेंट में एक दो लेक्चर्स ले लूंगा प्रॉपर, खाली सब्सक्रिप्शन पे, बहुत अच्छे से समझेगा। इनकम। सेकंड, life membership fees. If nothing is given, it will be treated as liability. Membership fees. It is to be treated as capital. It is to be added in the capital fund. Add in capital fund on liability side. इसमें कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है। एनपीओस में कैपिटल फंड इन लाइबिलिटी। कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, खाली लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड है, रिसीव साइड पे लाइफ मेंबरशिप फीस है, आग बंद करके कैपिटल फंड में ऐड करो, ठीक है। इट इज ए कैपिटल फंड। एक्चुअल में टू बी वेरी फ्रैंक, there are two accounting policies that can be followed with respect to life membership fees. There are many NPOs in real life, they treat life membership fees as their income and not the capital fund. And there are some, right, NPOs who treat life membership fees as their capital fund. मतलब कोई लोग उसको इनकम मानते हैं, कोई लोग उसको लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि देखने के दो तरीके हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आप एक पर्सन के, मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, वो बोलेगा मैं एक ही बार पे करने वाला हूं, उसके लिए तो एक ही बार पेमेंट करना है। बट अगर आप क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, क्लब, उसको तो एवरी ईयर नए नए मेंबर्स आएंगे, तो एवरी ईयर दे विल बी रिसीविंग सम लाइफ मेंबरशिप फीस। तो क्लब के लिए लाइफ मेंबरशिप फीस, राइट, इज रिकरिंग इन द नेचर। सो कोई क्लब्स they treat life membership fees as an income and not capital fund. ऐसे भी ट्रीटमेंट है, इन CA फाउंडेशन यू विल लर्न दैट ट्रीटमेंट। या कोई लोग, कोई फर्म्स क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब कुछ तो लाइफ रहेगी ना, 20 साल के लिए आप एक ही बार पेड करो, 20 साल के लिए मेंबरशिप फीस रहेगी। एक डिसाइड किया कि ऑन एन एवरेज लाइफ 20 ईयर ले जाएगी इसके आगे, तो जो उसने पेड किया है ना 20 ईयर के लिए मान के धीरे धीरे उसको इनकम में लेके आएंगे। पहले लाइबिलिटी में दिखाएंगे, ईयर खत्म होगा थोड़ी इनकम, फिर नेक्स्ट ईयर में थोड़ी इनकम, थोड़ी इनकम, लाइबिलिटी से इनकम में लेके आएंगे। जैसे फिक्स एसेट को एसेट से एक्सपेंस में लेके आते हो, वैसे इस लाइबिलिटीज को इनकम में लेके आते जाएंगे। ऐसी भी ट्रीटमेंट है, बट हमारे बोर्ड्स में वो ट्रीटमेंट नहीं है, बट दोस ट्रीटमेंट्स आर मोर लॉजिकल देन दिस, राइट। हम इन 12th वी विल ट्रीट लाइफ मेंबरशिप फीस एज कैपिटल फंड। जब मैं आपको फाउंडेशन में एनपीओ सिखाऊंगा, जो यहाँ पे खत्म होगा, जहां पे हमारा 12th खत्म होगा वहां से वो स्टार्ट होगा, तब मैं बोलूंगा कि लाइफ मेंबरशिप फीस कैन बी आल्सो इनकम। देन थर्ड, लीगसीज। लीगसीज मतलब क्या?
किसी की डेथ होने के बाद ही डोनेट्स हिज एंटायर प्रॉपर्टी टू द एनपीओ. एनपीओ रिसीव्ड, राइट, एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन हिज प्रॉपर्टी. एनपीओ को पैसे मिले, किसी ने उसके राइट विल में लिखा होगा मेरी डेथ होने पे 10 लाख मेरे प्रॉपर्टी में से एनपीओ में जाए. ऐसे कितने लोग करते हैं, यू आपने सुना भी होगा, राइट. अगर ऐसे है तो ये जो पैसा आया है ना, दैट विल बी, दे विल रिसीव, राइट, वंस ए वाइल. सो देयरफॉर इट इज एड इन कैपिटल फंड. इसको लायबिलिटी माना जाएगा. वो इनकम मत बोलो, उसको कैपिटल फंड बोलो. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. रुस्तम मूवी देखिए, रुस्तम मूवी देखिए ना, उसमें अक्षय कुमार दिखाया एज अ रुस्तम. एंड उस मूवी, दैट इज अ एक्चुअल स्टोरी. वो मैं केस स्टडी कभी समझाऊंगा आपको. मूवी में दिखाया वो सब कुछ राइट ट्रू नहीं है. एक्चुअल में जो अक्षय कुमार ने जो कैरेक्टर किया है ना, अक्षय कुमार वाज ऑन वर्ज ऑफ राइट डिफीट. वो एक्चुअल में हारने वाला था. इंदिरा गांधी इंटरवीन बिकॉज अक्षय कुमार एंड इंदिरा गांधी की कास्ट सेम है. अगर आप जाके चेक करो, इंदिरा गांधी वाज अ प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड शी इंटरवीन एंड शी फोर्स जूरीज. वो तो जूरीज को फैसला लेते थे. तो इंदिरा गांधी इंटरवीन एंड वो केस अक्षय कुमार के फेवर में रिजल्ट लगा. एक्चुअल में अक्षय कुमार वो हारने वाला था. दैट इज एक्चुअल हिस्ट्री. कभी मैं समझाऊंगा वो केस, इंटरेस्टिंग है. मूवी पता है तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड रहेगा उसका. उस मूवी के एंड में, या एंड में नहीं, बीच में दिखाया एक्चुअली कि अक्षय कुमार डिमांड करता है कि मुझे पैसे चाहिए कुछ. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट. और वो उसकी आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द हीरोइन, राइट. वो साउथ इंडियन है शायद से ना. क्या नाम है उसका, या मूवी का नाम भी बोला तो भी चल जाएगा. उसमें उस मूवी में क्या नाम है उसका? हाँ, एलेना डिक्रूज. हाँ, राइट ना. वो बोलती कि राइट, रुस्तम ने बोला कि इतने पैसे इस अकाउंट में जाने चाहिए. देखा है ना. एंड जो मूवी देखो एंड होगी ना, जब नाम आते हैं तब उसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग है. उसमें ये लिखा गया है कि वो पूरा पैसा एक एनपीओ को जाता है, एक ट्रस्ट को. अक्षय कुमार वो पैसा लेता नहीं है, वो पैसा एक ट्रस्ट को जाता है. आई थिंक वो ऑर्फनेज है. देखो कभी मूवी एंड देखो, लास्ट के जब नाम आना स्टार्ट होता है ना, तब वो ऐसे न्यूज दिखाए उन्होंने ऊपर आते हुए. कभी ऑब्जर्व करना, राइट. तो उधर दिखा है कि राइट किसने डोनेशन दिया ये नहीं पता है, राइट. वो डोनेशन मिलता है, बस एक न्यूज आ गई है ऐसे, वो जो पैसा वो डोनेट करता है पूरा. तो अगर ऐसे केसेस में वो जो पैसा है, द एनपीओ विल ट्रीट इट एज एन राइट, नॉट एज एन इनकम बट एज ए कैपिटल फंड. ठीक है. 4 डोनेशंस. राइट, अगर स्पेसिफिक डोनेशंस है, if there are specific donations, ठीक है, like donation for building, donation for hospital, donation for gymkhana, स्कूल को मिला है जिमखाना डेवलप करने के लिए. आई यूज्ड टू बी इन बीएमसीसी, तो मैं आपको बोलता हूँ कि बीएमसीसी में वो आई थिंक पुणे वाला ऑडिटोरियम है, राइट. मैं जब था तब स्टूडेंट था, वो ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन शरद पवार जी ने किया था, और वो साइरस पुना वाले के नाम पे, राइट. देवर क्लासमेट्स. तो वो जो स्पेसिफिक डोनेशन दिया था साइरस पुना वाला ने, तो उन्होंने उनको ऑडिटोरियम के लिए दिया था. सो दैट वाज व्हेन ही गेव इट टू द बीएमसीसी, दैट वाज द स्पेसिफिक डोनेशन. इट वाज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. और बाद में जब वो डोनेशन यूज हो गया, लायबिलिटी सेटल हो गई. कॉलेज वाले कोई दूसरा ऑडिटोरियम नहीं कर सकते, या दूसरे कहाँ पे खर्चे नहीं कर सकते थे, because he has given with a specific instructions with a condition. जो चंदा दिया गया है, जो पैसा दिया गया है, with some condition, अगर ऐसे है, specific donations कहलाएगा. That is to be treated as a liability because you are liable to use it only for that purpose. उसका use restricted है. So specific donations
comes with a liability. बैलेंस इंक्रीज होगा बैंक बैलेंस, बट लाइबिलिटी बनेगी. एक्चुअली वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसको फंड में कन्वर्ट किया जाता है. मतलब क्या होगा, जब बीएमसीसी को पैसे मिले होंगे, सपोज उसने 50 लाख दिए, तो 50 लाख बीएमसीसी विल रिसीव एंड बीएमसीसी विल इन्वेस्ट, राइट. वो सपोज एफडी में इन्वेस्ट किया, ऐसे पकड़ के चलो, एंड वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे, सो पैसा सेफ रहे, यूज ना हो किसी दूसरे पर्पज के लिए. तो इन्वेस्ट हो गए पैसे, एंड जब वो ऑडिटोरियम का काम निकला होगा, जब पेमेंट करना होगा, उस पैसों में से उन्होंने किया होगा. उस पे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा जब तक वो यूज नहीं होता है. सो उससे फंड्स बनाते हैं. ठीक है. फंड अकाउंटिंग इज नॉट ऑन सिलेबस, बट फंड अकाउंटिंग भी होती है. मतलब जो चंदा मिल रहा है उसको हम इन्वेस्ट करके रहेंगे. आपने देखा होगा कभी कभी, शॉक यू विल बी, मुझे नहीं पता कितने लोग, यू मस्ट हैव बीन सरप्राइज कि एवरी ईयर जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक किसी स्कूल में थे, एवरी ईयर कोई टॉपर होता था, उसको प्राइजेस मिलते थे कोई एक पर्टिकुलर नाम के अंडर, इस बंदे के. ये कैसे पॉसिबल होता था, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना. सपोज मैंने डिसाइड किया है कि वाडिया में जो भी अकाउंट्स में टॉप करेगा, मैं उसको 10,000 का प्राइस दूंगा. ऐसे मैंने डिसाइड किया है किसी, सपोज मेरे रिलेटिव के नाम पे या एकत्रम कैंप के नाम पे, राइट. हम वहां पे जो भी टॉप करेगा उसको देंगे. एग्जाम्पल, तो मैंने 10,000 नहीं दूंगा, मैं उनको 1 लाख दूंगा. सपोज मैंने कॉलेज को 1 लाख रुपए दिए, सो वाडिया को 1 लाख रुपए मिले, वाडिया कॉलेज को मैंने 1 लाख रुपए दिए. ठीक है, ध्यान देना, सिंपल एग्जांपल है तो आपको समझेगा एक्चुअली होता क्या है. एकत्रम कैंप गिव 1 लाख टू वाडिया, और क्या कंडीशन डाली है कि जो भी टॉप करेगा कॉलेज में, हम उसको 10,000 का एवरी ईयर गिफ्ट देंगे एज ए प्राइस, ₹1 लाख दिए. Can the college will use it for any other purpose? No, they will use it only for the distribution of the prizes. Every year 10,000. तो ये 1 लाख 10 साल में खत्म हो जाएगा ना. तो मेरा जो प्राइस है वो 10 साल में खत्म हो जाएगा, प्राइज मनी. तो वाडिया को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ऐसे मत करो, या ऑब्वियसली दे विल डू दैट ऑन देयर ओन. ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे. सपोज उन्होंने एफडी में डाला, 1 लाख रुपए लिए मेरे से, और उन्होंने एफडी बना दी उसकी, तो उनके पास पैसे आए, उनके पास से पैसे गए, एफडी बन गई. जब उन्होंने मेरे से पैसे लिए, मतलब मैंने उनको दिए, कॉलेज को हम जाके देंगे, वो थोड़ी हमसे मांगेंगे, कि वॉलंटरी लोग देते हैं ना, हमने उनको जाके पैसे दिए, उनके बुक्स में एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, दे रिसीव द मनी टू डोनेशन, 1 लाख 1 लाख. ठीक है. एंड दे इन्वेस्टेड, वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए, तो एंट्री आ गई, सपोज डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट. एक्चुअली इसको डोनेशन फंड बोलेंगे वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फंड, और इस फंड को वो इन्वेस्ट करेंगे. सो जब उन्होंने वो पैसा बैंक में डाला, ध्यान देना आप कैसे होगा. डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 लाख. अब वाडिया की बैलेंस शीट टू दैट एक्सटेंड देखो, कॉलेज की बैलेंस शीट, दे रिसीव्ड 1 लाख, बैंक असेट साइड पे दिखेगा 1 लाख, बराबर. एंड एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई, डोनेशन फंड, प्राइज डोनेशन फंड. सपोज मैं सिंपल रखता हूं, डोनेशन फंड 1 लाख. बाद में उन्होंने इस 1 लाख को क्या किया, इन्वेस्ट किया. उन्होंने 1 लाख रुपए किस में डाल दिए, इन्वेस्टमेंट में. सो बैंक से चले गए एंड डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट बन गया, डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट. सो बैंक से बैंक में आया, बैंक से गया, इन्वेस्ट किया कॉलेज ने. सो बैंक बैलेंस उनका 0 हो गया. अब टू दैट एक्सटेंट आए भी गए भी इन्वेस्टमेंट. अब
उन्होंने 10% एफडी, दिस इज 10% इन्वेस्टमेंट है, तो एवरी ईयर दे विल गेट 10% ऑन 1 लाख. सो फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख पे 10% मिलेंगे, पैसे मिलेंगे. तो एंट्री आएगी, उनके बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000. बराबर. मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है. इसके बाद एक ये इंटरेस्ट फंड में जाता है, वो इंटर आती है, बट मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता. सो इस 1 लाख पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, मैंने आज उनको दिए, रिजल्ट लगा, मैंने बोला कि नेक्स्ट ईयर से एकत्तम कैंप में नाम पे 10,000 का गिफ्ट रहेगा, जो भी फर्स्ट आएगा उसको कॉलेज में. तो उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने इन्वेस्ट किया. 1 ईयर होने के बाद they will receive 10,000 on that. इंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड ये जो 10 सर उनके बैंक में आए, जो टॉप आएगा उसको देंगे. इंट्री आएगी प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट राइट. सो जो पैसा उनके बैंक में इंटरेस्ट बोल के आया, वो उन्होंने प्राइस बोल के दे दिया. तो उनकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे रहेगी और डोनेशन फंड 1 लाख. ये जब तक कॉलेज चलेगा तब तक 10,000 का गिफ्ट मिलेगा. एक ही बार मैंने 1 लाख दिए, दे इन्वेस्टेड, एवरी ईयर दे विल रिसीव 10,000 इन इट. वो क्या करेंगे, प्राइस. नेक्स्ट ईयर में फिर 10,000 मिलेंगे, प्राइस बोल के देंगे. मतलब पैसा आएगा, प्राइस बोल दिया. 10,000 आएंगे, 10,000 प्राइस, 10,000 आएंगे, 10,000 की प्राइस. एवरी ईयर वैसे होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 लाख तो एफडी वैसे के वैसे है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अब 10 साल नहीं चलेगा, पैसा सालों साल चलेगा. सो इसको बोलते हैं फंड अकाउंटिंग. इसको बोलते हैं फंड अकाउंटिंग. नाउ दिस डोनेशन गिवन इज फॉर विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि नहीं आप इसके लिए यूज करो, बाकी किसके लिए नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सच डोनेशंस आर कॉल्ड एज राइट लाइबिलिटीज. उनको हम लाइबिलिटीज में दिखाते हैं. डोनेशन रिसीव्ड विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस राइट, हम उनको लाइबिलिटी में ऐड करते हैं. एंड इफ देयर इज नो सच डोनेशन, हम दगड़ू शेठ के टेंपल में जाते हैं, हम उधर पैसे डालते हैं. डालना नहीं डालना, आई एम नॉट राइट, मैं उसमें डिबेट नहीं करना, मैं नहीं डालता, ठीक है. उससे बेटर बाहर जो बेगर है उसको दे दो. श्रद्धा है तो जाओ राइट, आशीर्वाद ले लो भगवान का, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट पैसे मत डालो. दगड़ू शेठ को कुछ कम नहीं है, आपके 10-15 रुपए से कुछ होगा नहीं. उनका देना है तो बहुत दे दो, फिर भी उनका कुछ होगा नहीं. आपसे भी देने वाले बहुत लोग हैं. तो आपने जो उनके वो दक्षिणा पेटी में डाला, आपने बोला उनको कि आप हार ही ले लो, आप यही करो, आप वो करो, नहीं. यू आर गिवन दैट विदाउट एनी कंडीशन. नाउ दैट डोनेशन रिसीव्ड इज देयर इनकम. सो विदाउट एनी कंडीशन, नॉर्मल डोनेशन राइट, not specific donation. Specific donation is income. Is income. देखो आपने सुना होगा, आपके कॉलेज को ग्रांट्स मिलती है. ग्रांट्स सुना है ना? ग्रांट, हमारा कॉलेज ग्रांटेड कॉलेज है, मतलब यूजीसी राइट. एकत्तम को कुछ फायदा नहीं मिलेगा क्या? अरे ऐसे थोड़ी है. हम जब डोनेशन दे रहे तो राइट, वी आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग द स्टूडेंट ना. कॉलेज को क्या मिला? कॉलेज आल्सो वांट्स टू राइट डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स. तो एग्जांपल ऐसे कितने लोग रहते हैं कि जो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो ऑर्फनेज, प्राइवेट ऑर्फनेज होते हैं, हाउ विल दे रेज द फंड्स? सो लोग डोनेशन देते हैं एंड उससे वो चलाते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा उससे वो डे टू डे खर्चा निकालते हैं. Wade is doing really good work. If they are giving such prizes, we are also helping them. हमें नहीं पता ना कौन स्टूडेंट है, तो वो लोग डेली स्टूडेंट से उनका मिलना जुलना है, तो हमने उनको पैसे दे बोले आप करो, एंड दे आर यूजिंग इट वेरी सिंसियरली.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एग्जांपल जैसे मैंने बोला हमारे स्कूल में राइट हमारे एल्यूमिनी की एसोसिएशन है, तो हम एवरी ईयर 1000 रुपीज देते हैं। हम उनको कुछ नहीं बोलते कि आपको जिसके लिए यूज करना है करो। आप वहां पे जाके बच्चों के लिए सेमिनार ले लो, वहां पे जाके आप कोई एक्सपर्ट्स को बुलाओ, उनको ऑनररी पेमेंट करो, वो गाइडेंस करेंगे बच्चों को, मेडिकल कैंप रखो ऐसे। और एट द सेम टाइम अगर आपको राइट किसी को स्कॉलरशिप देनी है, स्कूल नोज ना, स्कूल को पता है ये सब चीजें, या जो बच्चे वो एसोसिएशन चलाते हैं दे आर इनटू डे टू डे टच विद द स्टूडेंट्स, तो उनको पता है किसको पैसे की जरूरत है, तो अगर उनको देंगे तो उनको दे देंगे ना। बट हमने ऐसे थोड़ी बोला कि इसी काम के लिए करो, नहीं। बट अगर मैं उनको बोलता हूँ कि ये ले लो 10,000 रुपए और ये स्पेसिफिकली राइट इस ये खाली स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहिए, तो दैट विल बिकम स्पेसिफिक डोनेशन। समझ में आ रहा है? सो एक होता है नॉर्मल डोनेशन विदाउट एनी कंडीशन, आप दे देते हो या कंसर्न रिसीव्स इट, सो दे कैन पुट फॉर एनी पर्पस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज, इट इज इनकम। एंड if you receive some specific donation you cannot use for any purpose, so it becomes your liability to use only for that purpose, so it is treated as a liability. ठीक है? So like example pm cares fund, सुना है ना? pm cares fund, उसमें जो पैसे डाल रहे हैं हम लोग, अब pm cares fund वाले like pmo उस ऑब्वियसली टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना के लिए वो यूज कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली उससे वो क्या परचेस कर रहे हैं क्या नहीं हमें क्या पता। हमने कुछ कंडीशन के साथ नहीं दिए थे, हमने वहां पे पैसे दे दिए राइट। सीएम रिलीफ फंड होता है, पीएम रिलीफ फंड होता है, हम उनमें पैसे देते हैं, अब वो पैसे यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर, जो भी कैजुअलिटी है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, तो हम उसमें दे रहे पैसे। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू यूज दैट मनी फॉर द कॉज राइट, जिसके लिए वो फंड बनाया गया है। इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन। मैं देते टाइम मैंने कुछ ये नहीं किया, बट मैंने उस फंड में डाला है, मतलब इट इज देयर लाइबिलिटी टू यूज दैट फॉर द पर्पस, वो किसी दूसरे काम के लिए नहीं यूज कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपने वही दक्षिणा पेटी में डाल दिया, दे कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस। आप उनको जाके नहीं बोल सकते आपने इसके लिए क्यों यूज किया, उसके लिए क्यों यूज किया, नहीं। ठीक है? सो इफ यू रिसीव स्पेसिफिक डोनेशंस, एनपीओ रिसीव स्पेसिफिक डोनेशन, इट इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी, अदरवाइज इट इज इनकम। ठीक है? आगे नेक्स्ट endowment fund. Is RTA allowed to PM care funds? Actually अभी बीच में वो बवाल भी बचा था, अपोजिशन और सेइंग कि पीएम केयर फंड्स का जो भी रिसीव पेमेंट अकाउंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने देनी चाहिए बोल के। ठीक है? अब उसमें आरटीआई अलाउड नहीं होकर वो लीगल एस्पेक्ट है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है? सो और मैं तो इस ओपिनियन का कि there should be transferability. ठीक है? We people have the trust in the government, therefore they have given the money. लोगों ने बहुत पैसा दिया, ऐसे नहीं है राइट, तो ऑब्वियसली दे शुड आल्सो वो करेंगे राइट, वो देंगे भी, मतलब आई डोंट थिंक कि दे विल बी यूजिंग द मनी फॉर सम अदर पर्पस, या कोई भी गवर्नमेंट जनरली ऐसे पर्पस ऐसे फाइट में नहीं करना चाहिए, आइडियली बोल रहा हूँ। अब होगा क्या आई डोंट नो। ठीक है? ठीक है? बिकॉज हम उस पर कमेंट भी नहीं कर सकते कुछ, बिकॉज कंसिडरिंग देम वी हैव वेरी राइट लिमिटेड एक्सेस राइट, बाकी लोगों को ज्यादा पता होगा उसमें से। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला आपको, इंडोमेंट फंड। इफ इट इज इंडोमेंट फंड इट इज अ लाइबिलिटी, एनी फंड इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ स्पेसिफिक, एनी फंड इज अ लाइबिलिटी। तो डोनेशन फंड होने दो, इंडोमेंट फंड होने दो, बिल्डिंग फंड होने दो, लाइब्रेरी फंड होने दो, any fund is a liability and interest on such funds are also liability. Like provident fund, याद है ना हम liability बोलते थे, and interest on provident fund investment हम liability में ऐड करते थे। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक फंड है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट है पीएफ एंड उसकी इन्वेस्टमेंट अपोजिट साइड पे, एंड उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा इट इज टू बी एडेड इन द फंड, लाइबिलिटी में ऐड होगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन एनी स्पेसिफिक फंड, फंड है आपने वो इन्वेस्ट किया इसलिए उसको फंड बोलते हैं, पैसे आए आपने इन्वेस्ट किया तो लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी बोल के दिखेगा, असेट में इन्वेस्टमेंट बोल के दिखेगा। इस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज अगेन ए लाइबिलिटी, वो उसके लिए यूज किया जाएगा, बाकी काम के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? सो इट इज अ लाइबिलिटी। नेक्स्ट आगे
लिख लेना, कैपिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिख लेना कैपिटलाइजेशन। You capitalize expenses, at the same time you capitalize incomes. Expenses are to be capitalized means add in expenses, add in assets. Wages paid for installation of machinery is to be capitalized, means to be added in the machinery. So capitalization of expenses means to be added in the asset and धीरे धीरे हम उनको through depreciation expense में convert करेंगे. And when they say capitalize the incomes, we have to add them in the capital fund liability. Add in capital fund और liability. ठीक है? So ये एक another important term है. अब देखो नोट्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही दे के रखे. Entrance fees. If nothing is given, it is treated as income. If nothing is given, entrance fees is to be treated as an income. But if they ask you to capitalize it, I will add it in a liability side, capital fund में मैं add करूंगा. If nothing is mentioned about entrance fees, I will add in income. ठीक है? And if they ask you to capitalize, add in capital fund. Then, ठीक है? ये नीचे दिया देखो. If nothing is given in the question about the treatment of the entrance fees, हम 12th में उसको इनकम में लेते हैं, सीए फाउंडेशन में हम उसको कैपिटल फंड में लेते हैं. इफ नथिंग इज मेंशन. सो हम अभी 12 का सोच रहे तो हम बोलेंगे उसको हम किस में ऐड करेंगे? इनकम में. इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू कैपिटलाइज द एंट्रेंस फीस, आई विल ऐड इन कैपिटल फंड. देन लाइक entrance fees is 1 lakh. Entrance fees received, receipt side पे 1 lakh है. They will say capitalize entire entrance fees. So 1 lakh के 1 lakh I will take in capital. If they say capitalize 60% of the entrance fees, so 1 lakh में से 60,000 I will add in capital fund and 40% को मैं income बोलूंगा. 40,000 को income. So incomes are capitalized means what? Incomes are added in the capital fund. Incomes are added in the capital fund. Then आगे लिखा है life membership fees, if nothing is mentioned, it is always added in the capital fund. Donations, general donations are credit to income and expenditure, मतलब हम उनको income मानेंगे. Specific donations, right, add in capital, इसको capital fund में add करेंगे. And endowment funds, right, any fund is a liability, हम उसको liability में दिखाएंगे. Subscriptions मैंने बोला है, they are incomes, periodic payments, incomes, इसकी ट्रीटमेंट मैंने अभी समझानी है. Legacies बोला मैंने, legacies are capital in the nature, they are liabilities, capital fund में ऐड किया जाएगा, right, they are to be added in the capital fund as per will of the deceased person. ठीक है? Specific fund और endowment fund हम उसको liability में लेते हैं, and all incomes related to specific fund or endowment fund are added in that fund on the liability side. Interest received on specific funds, interest received on endowment fund, receipt side पे है, so that is to be added in the liability side. And expenses related to the funds are deducted from the fund. वो मैं example में ले लूंगा. ठीक है? यहाँ तक और कुछ है नहीं. So ये आपके फंड के रिलेटेड का, ये स्पेसिफिक आइटम्स है. टेक्स्ट बुक में देखते हैं इसके सिवा अगर कुछ अलग लिखा है उन्होंने. ये इंट्रोडक्शन था. ये deferred revenue expenditure ना, this concept in accounting is not actually applicable. अब देखो, really good example. अब मैं आपको समझाऊंगा. Everyone has to pay 100% attention.
This is the format of recent payment. This is opening balance, opening asset. Subscription received is income. Entrance fees received, income if nothing is given. Admission fees, income. Life membership fees, capital fund, add in capital fund, liability. Legacies received, add in capital fund. Government grants, if specific, add in liability. If not specific, add in income. Donation general, add in income. Donations for specific fund, add in liability. Like donations for specific fund, like building fund, prize fund, tournament fund. स्पेसिफिक डोनेशंस हैं तो उस फंड में लाइबिलिटी में ऐड करेंगे. जनरल डोनेशंस इनकम में ऐड करेंगे. चाहे तो इसके सामने लिखो, कभी भी आप ये देखोगे ना आपको क्लिक होगा, लिखो उसके सामने दिस इज ओपनिंग असेट. हाँ, एंट्रेंस फीस इफ नथिंग इज मेंशन क्या होगा वो लिख रहा हूं, ठीक है. इट इज इनकम, ऐड इन इनकम. एंट्रेंस फीस. एडमिशन फीस, ऐड इन इनकम. लाइफ मेंबरशिप फीस, add in capital. Legacies, add in capital, liability में. Government grants, if nothing is mentioned, income, add in income. हाँ बोलते specific government grant है तो liability में add करेंगे. General donations, add in income. Donations for specific fund, add in liability. Liability में जो fund है वहां पे add करेंगे. अगर नहीं है तो अलग line item बनाएंगे. Dividend received, add in income. Hire or rent ऑफ हॉल रिसीव्ड, हमारा जो एनपीओ के पास जो हॉल है हम उसको रेंट पे देते हैं लोगों को. यहाँ पे बाजू में आई डोंट नो द नेम, अपने क्लास के पीछे साइड में देखो, राइट. मैं भूल गया उसका नाम, किसको पता है? यहाँ के पीछे देखो गवर्नमेंट ऑफिसेस है सब, वहां पे गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है? अरे कॉलेजेस रिसीव ग्रांट्स ना, कॉलेज नहीं का ग्रांट रिसीव करती है. सपोज कॉलेज को कुछ कंप्यूटर लैब बनानी है इसलिए उनको ग्रांट मिलती है, ठीक है. नहीं, नेहरू मेमोरियल अलग है मैडम ये. हाँ बचत, हाँ ये क्या है, ये बचत भवन कुछ तो है ना, क्या है रे कार्तिक वो? हाँ वो वाला है ना वो, अल्प बचत, अल्प बचत, राइट. अल्प बचत वो आपको मतलब वो नॉर्मली अवेलेबल करवा के देते हैं और उसका प्राइस भी कम रहता है, मतलब रेंट भी कम रहता है. इट इज एनपीओ ओनली, ठीक है. सो वो उनके मेंबर्स को अवेलेबल करवा के देते हैं. इवन अदर्स लोग, इवन इफ यू नॉट ए मेंबर, फिर भी आपको मिलता है. यू हैव टू पे द स्पेसिफिक रेंट. सो दे आर मेकिंग अवेलेबल देयर हॉल एंड दे रिसीव द रेंट, दैट इज द इनकम, ठीक है. हाँ आई डोंट नो, मैं कभी अंदर नहीं गया, मैं बाहर से देखा हूँ. बैडमिंटन कोर्ट वगैरह वो बोल रहा है, तो वहां पे उसकी जो सर्विस वो, राइट, उससे जो पैसा मिलता होगा दैट इज देयर इनकम, एड इन इनकम. सन्ड्री इनकम, ऑब्वियसली इनकम. सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, स्क्रैप, इनकम. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्क्रैप, इनकम. रद्दी वगैरह सेल करते हो ना आप, वो. मिसलेनियस रिसीट्स, इनकम. टूर्नामेंट रिसीट्स, इनकम. टूर्नामेंट रखते हैं स्कूल में, उससे जो पैसा आता है, इनकम. देन अच्छा, नेक्स्ट, क्रिकेट फीस, इनकम. ट्यूशन फीस स्कूल के लिए, इनकम. टर्म फीस स्कूल के लिए, इनकम. कलेक्शन ऑफ फाइन, इनकम. बीएमसीसी में जब मैं स्टूडेंट था ना तब बहुत फाइन मिलता था, वो मॉर्निंग पीटी वगैरह. तो हम हंसते हंसते बोलते थे कि बीएमसीसी के मेन इनकम फाइन है, ट्यूशन फीस इज सेकेंडरी इनकम. एक्चुअली ऐसे नहीं है, बट बहुत बच्चे फाइन देते थे. सो दैट फाइन रिसीव्ड इज देयर इनकम. लॉकर रेंट, आप देखो जिम वगैरह में जाते हो, कभी कभी वो लॉकर रेंट लेते हैं. आप लाइब्रेरीज में पढ़ने के लिए जाते हो, वहां पे बुक्स रखते हो, उसका अलग से रेंट होता है. That rent received by such NPO is income. Exam fees, income. अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स, पेमेंट्स आर मोर देन, यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे प्रिंटिंग करते टाइम पेमेंट होना चाहिए वो, ठीक है. इफ पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स, ये ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में लिखा जाएगा. ओडी लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी. नेक्स्ट ईयर में पे करना होगा.
अच्छा अब यहाँ पे देखो, ठीक है, देन दिस इज ओपनिंग ओवरड्राफ्ट, ये रीपेड हो जाता है, ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस, इफ नथिंग इज गिवन एक्सपेंस। सर यहाँ पे करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा है, वो मैं समझाऊंगा, बट इट इज एक्सपेंस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पेमेंट फॉर जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड एक्सपेंस, ऑडिट फीस एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज अ परचेस, हम उसको एक्सपेंस मानते हैं। स्पोर्ट्स क्लब के लिए वो जो टेनिस बॉल्स, राइट, स्टम्प्स, मैट या वो जो नेट्स वगैरह होते हैं, दे गेट कंज्यूम्ड, तो वो उनको हमेशा परचेस करना होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलते। सो दोज आर राइट योर एक्सपेंसेस, परचेसेस काइंड ऑफ थिंग। इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस, टेलीफोन मोबाइल चार्जेस एक्सपेंस, बैंक चार्जेस एक्सपेंस, postage expense, conveyance expense, expenses of annual gathering function expense, FD purchased asset, purchase of fixed asset, payment for assets asset, furniture purchase किया, books purchase किए, books, furniture, investments all are assets, ये सब assets है। इन्वेस्टमेंट तक, न्यूज़पेपर्स के लिए पेमेंट किया एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस नाम में एक्सपेंस है, रिपेयर्स एक्सपेंस, एंड सब पेमेंट होने के बाद जो बचा है ये क्लोजिंग असेट, ठीक है, क्लोजिंग असेट। आई विल शो यू बीसीसीआई वेबसाइट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा, आई डिडंट नो द फुल फॉर्म। अबाउट रहेगा इनके, जनरली मुझे ये क्या वेबसाइट में विजिट नहीं करता। हम्म, पूरी हिस्ट्री है शायद। अरे बहुत कुछ है इसमें, पूरी हिस्ट्री है उनकी क्रिकेट की। इसमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम उनके फाइनेंशियल्स देखते हैं, एक सेकंड, वी विल गो एंड चेक देयर फाइनेंशियल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिखता है क्या? BCCI registered under Tamil Nadu Societies Registration Act. It is a society. Societies Registration Act 1975, जैसे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, आपकी बिल्डिंग में सोसाइटी होती है, वैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इधर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, the object and the purpose of BCCI are to control and improve quality and the standard of the game of the cricket in India, lay down the policies, roadmaps, guidelines, and make the rules and regulations in all the matters related to the game of cricket, recognizing that primary stakeholders are players and the cricket fans in India, and that accountability, transparency, and purity in right integrity of the game are the core values. Provide measures necessary for promotion development of the game of the cricket in India, right, welfare and the interest of cricketers, and elimination of the unethical and unfair practices in the game of the cricket. देखो ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है, and for that purpose organize coaching schemes, establish coaching academics, hold tournaments, exhibition matches, test matches, ODIs, T20s, right, and any other matches and
टेक ऑल अदर रिक्वायर्ड स्टेप्स. देखो उनके पर्पस. सो इट इज ए एनपीओ बेसिकली. देखो ऑब्वियसली राइट, ये स्कोप वगैरह कभी चाहे तो एक बार पढ़ लेना ही है. यू विल अंडरस्टैंड. इट विल बी इंटरेस्टिंग बेसिकली. सो इट इज नॉट कंपनी, इट इज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी. ठीक है. देन अमूल जाके चेक करो, इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन अमूल पता है ना. अब ध्यान देना यहाँ पे इधर नीचे रहेगा. किधर रहेगा उनके रिजल्ट्स, नहीं चाहिए हमें. अदर मुझे क्या चाहिए, उनके फाइनेंशियल्स चाहिए. फाइनेंशियल्स, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट. ठीक है. देखते एक, अगर 1 मिनट में मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वैसे भी 5:30 होने को है. अबाउट वगैरह ये सब चीजें है. वीडियो नहीं, फोटो गैलरी नहीं, डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल नहीं. आई डोंट नो कहाँ पे मिलेगा, मुझे चेक करना होगा यार. ऐसे मैंने लास्ट ईयर दिखाया था बच्चों को, पता है क्या, 12th में. क्योंकि वैसे में कभी इस वेबसाइट पे इतना आता नहीं. आई डोंट नो. टीवी पे क्यों. हाँ देखो, हाँ मिल गया. कुछ तो रहेगा कि इधर अंदर, होपफुली ये होना चाहिए. देखो एवरीवन, एनुअल रिपोर्ट 16-17 ईयर का, 1 अप्रैल 16 to 31 मार्च 17 का, जो मुझे वेबसाइट पे मिला या जो मेरे पास है मैं वो दिखा रहा हूं आपको. ठीक है. यहाँ पे हम मिल सकते हैं हमें. ऑडिटर्स रिपोर्ट पेज नंबर 118, 125 उधर जाते हैं डायरेक्टली. ठीक है. हंड्रेड एंड 125 ना. हाँ ये रहेगा. हाँ देखो किधर है ऑडिटर्स रिपोर्ट. ओके. इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट्स टू द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. ठीक है. क्या है लिखो, पढ़ो. We have audited the accompanying financial statements of the BCCI, which comprises balance sheet as at 31st March 17 and the income and expenditure account for the year ended 31st March वो रहेगा for the then year ended, and summary of the significant accounting policies and other explanatory information. क्या बना रहे हैं वो, P&L बना रहे हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब ये एनपीओ है. नहीं नीचे आ जाओ. दिस इज बैलेंस शीट. सोर्सेस ऑफ फंड्स, जनरल फंड मतलब कैपिटल फंड को जनरल फंड भी बोला जाता है. द अदर नेम फॉर द कैपिटल फंड इज अ जनरल फंड. फिगर्स आर इन क्रोर्स. हाँ फिगर्स आर इन क्रोर्स. ऑलमोस्ट 3000 crores का कैपिटल है.
3000 करोड़ का ईयर मार्क फंड्स, मतलब स्पेसिफिक फंड्स रहेंगे कि उसके लिए यूज करने, ऑलमोस्ट 2000 करोड़. करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, advances taken, other liabilities and provisions. Liabilities total is 9143 crores. Assets देखो, fixed assets, अब वो देखना होगा हमें क्या है उनके ग्राउंड्स वगैरह रहेंगे, राइट. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स पेड अंडर प्रोटेस्ट, एडवांस टैक्सेस पेड वगैरह रहेगा, टीडीएस वगैरह. करंट असेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस देखो 3769 crores. इन्वेंट्री, उनकी इन्वेंट्री रहेगी ना, बॉल्स वगैरह रहेंगे ना, किट्स वगैरह, ये सब चीजें इन्वेंट्री में रहेंगे ना, टी शर्ट्स वगैरह इन्वेंट्री. आप बोलोगे खाली वो 11 लोगों को मत देखो, क्रिकेट इन इंडिया देखो, बीसीसीआई, रणजी बिंजी सब आ गया उसमें. रिसीवेबल्स एंड लोन्स एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. ठीक है, देन आगे अब देखो उनका क्या है रही है, ये पढ़ो क्या बनाया उन्होंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. पीएनएल नहीं है, देखो इनकम, पागल हो जाओगे आप उनकी इनकम देखे, 1891 करोड़. एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन करना होगा. इनकम फ्रॉम ग्रांट ऑफ मीडिया राइट्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, मीडिया राइट, वो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह उनको फीस लगाते होंगे ना, वो वाला. इनकम फ्रॉम मेन सीनियर इंटरनेशनल टूर्स, जो कोहली वगैरह अपनी जो टीम इंडिया जिसको बोलते हैं, वो जो टूर्स करते हैं ना, उससे कितना जनरेट हुआ है, 1036 crores इन दैट ईयर 16-17, अभी तो ज्यादा होगा. सरप्लस फ्रॉम इंडिया टूर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मे बी हमने यूएस में कोई टूर की होगी, आई डोंट नो, उससे उनका सरप्लस आया था. देखो सरप्लस, देन सरप्लस फ्रॉम आईपीएल इज देयर ना, सो 365. अब ये मत बोलना कि आईपीएल सब प्रॉफिट के लिए नहीं है, वी नो बट इट इज अंडर बीसीसीआई. ठीक है, 365. डिस्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंटरनेशनल और एशियन क्रिकेट काउंसिल, वो होता है ना, देखो हम बोलते हैं कि हमें आईसीसी के से कुछ पैसे लेने होते हैं ना, बिकॉज हमारे प्लेयर्स वहां पे जाके खेलते हैं, टीम इंडिया खेलती है, तो वो जो मैचेस लाइक वर्ल्ड कप एंड आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे कुछ तो वो अरेंज करते हैं ना, तो उसके फंड्स तो उनके पास जाते हैं ना, पूरा कलेक्शन वगैरह, तो उससे हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा हमें वो मिलना चाहिए, वो रहेगा उनका. डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंटरनेशनल और एशियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी एंड एसीसी, उनसे हमें 67 crores मिले हैं. मिनिमम गारंटी रॉयल्टी कुछ तो रहेगा, वो आई डोंट नो, पढ़ना होगा, रॉयल्टी रहेगी कुछ तो, राइट. इंटरेस्ट इनकम 171, अदर इनकम 4 crores. एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंसेस ऑन मेंस सीनियर इंटरनेशनल टूर्स एंड टूर्नामेंट्स, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अदर क्रिकेटिंग एक्टिविटीज, देखो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो सकती है उसमें, राइट. प्रोडक्शन कॉस्ट, अमाउंट ड्यू टू स्टेट एसोसिएशन, ये पैसे स्टेट एसोसिएशन को देते होंगे ना रन करने के लिए, तो वो एक्सपेंडिचर. देन डेफिसिट फ्रॉम होस्टिंग आईसीसी वर्ल्ड टी20 2016 टूर्नामेंट, 2016 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था ना टी20, उसमें हम लॉस में थे, शायद से इंडिया टीम पहले बाहर गई थी, इंडिया जो 1-2 मिनट टीम बाहर गई थी, लॉस में था. देखो डेफिसिट था, वो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, जाके गूगल पे सर्च करो चाहिए तो. डेफिसिट फ्रॉम होस्टिंग आईसीसी वर्ल्ड टी20 2016 टूर्नामेंट, लॉस में था 10 crores के. आगे इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, कोचिंग एक्सपेंसेस, ये रवि शास्त्री वगैरह उनका रहेगा उसमें, सब लेवल के कोचेस एट इवन रणजी टीम वगैरह सब जो भी रहेगा उनका, जो हमें स्ट्रक्चर चेक करना होगा. इंटरेस्ट ऑन द फंड्स, राइट. डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द असेट्स. प्रायर पेड आइटम्स मतलब जो अभी जो ये कर रहे, फाउंडेशन कर रहे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है ना, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, उसका दूसरा नाम है प्रायर पेड एक्सपेंसेस. मतलब टू दैट एक्सटेंट प्रीवियस ईयर्स एरर्स हैव रिजल्टेड इन 20.20 crores, मतलब 20 lakhs का प्रॉफिट कम किया है. आज मैं वो सिखाने वाला हूं उसमें. चलो मुझे एक एग्जांपल तो मिल गया. सरप्लस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह, सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, सरप्लस है उनका, फिर उन्होंने वो ट्रांसफर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए, स्टेट एसोसिएशन को, प्लैटिनम जुबली बेनेवोलेंट फंड जो भी रहेगा उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रिकेट डेवलपमेंट फंड, वो अलग अलग इसमें पैसे वो उन्हें डाल दिए. सोशल इनिशिएटिव्स फंड्स वगैरह, डिफरेंटली एबल्ड
क्रिकेट के लिए वगैरह, लेस ट्रांसफर टू वगैरह, वो उन्होंने ट्रांसफर फ्रॉम, वहां से फंड्स आए और यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर किए। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे खाली ये दिखाना है बीसीसीआई इज एनपीओ, बीसीसीआई इज एनपीओ। उनके फिक्स एसेट देखो रे क्या है, उनके फिक्स एसेट देखो, एक सेकंड, दिख रहा है क्या? वो थोड़ा पीडीएफ है ना, पीडीएफ है। उनके फिक्स एसेट में लीज होल्ड लैंड, बिल्डिंग्स, इंप्रूवमेंट ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ट्रेनिंग एंड फिटनेस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर फिक्चर्स, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, कार्स, ट्रॉफी रिप्लिकास एक्सेट्रा, वो जो भी रहेगा, कॉपीराइटेड बुक्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, कैपिटल डब्ल्यूआईपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये रियल लाइफ एग्जांपल है एनपीओ का आपके सामने, ठीक है। वो रहेगा, उनके प्रेसिडेंट वगैरह रहेंगे ना क्रिकेट बीसीसीआई के, वो रहेंगे ना, वो चेंज होते हैं ना एवरी ईयर या कुछ तो रहता है, मुझे नहीं पता उसका क्या है। मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ लेकिन ये पता नहीं प्रेसिडेंट वगैरह कौन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अपन सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है ना, बराबर ना, गांगुली प्रेसिडेंट है, कौन है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन है टीम इंडिया का? गांगुली है ना, हाँ, इसके लिए पता है मुझे, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है। We will end today's lecture, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू।